it's an immense pleasure to introduce Mr. Atul, and we are very much honored that Sir has Sir has taken out a few minutes for us from his very busy schedule. So thank you very much, Sir. And it is really going to be a very interesting session whenever you get the information from an industry person so that you can correlate the industry application from the theory. So that is what we always wait for. So let us introduce Mr. Atul. Mr. Atul Grover is a postgraduate MCA and graduate BCom and having a vast experience of 14 years in the IT industry, especially in business process consulting and business analyst domain. He comes from a service management, ITIL, ITSM domain and is currently pursuing his doctorate in metaverse to add to his portfolio. Atul has more than 3,000 hours of experience and trained more than 1,000 in his domain of training and people development and delivered more than 30 guest lectures in colleges and universities in India and the UK. Atul currently works as senior business process consultant and is based out in the United Kingdom. He follows his motto to learn and grow together and shares his knowledge with everyone on social media platform like YouTube and LinkedIn. So thank you very much, sir. And the virtual podium is all yours. Thank you. Over to you, sir. Okay. Hi everyone. My name is Atul Grover. Like मैम ने already बताया है. I'll not take much time क्योंकि you already have a classes from 3 o'clock. So introduction part हो गया है. Let's come to the topics directly. So today topic is little interesting. Design thinking, critical thinking and innovation. But the problem is that or the question is that ये thinking word आया कहाँ से? क्यों we have to be think it? So let's put something here. Everybody know that this is a problem. Every human being in this world is carrying some problem on his shoulders. पढ़ाई की टेंशन है, कमाने की टेंशन है, शादी की टेंशन है, जॉब की टेंशन है, घर चलाना है, घर खरीदना है, पेरेंट्स को सही टेक केयर करना है. सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑल अराउंड ऑफ अस. कुछ ना कुछ कभी ना कभी, जैसे अभी मैडम ने बोला कि कुछ स्टूडेंट्स नॉट एबल टू ज्वाइन द सेशन, वो भी प्रॉब्लम है ना. तो क्वेश्चन कम, अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया कैसे जाए. उसका कुछ तो तरीका होना चाहिए, कुछ तो पर्पस होना चाहिए, कुछ तो वे होना चाहिए उसको सॉर्ट आउट करने का. एंड दिस टॉपिक bring that thing together on that part. So 3 concepts which we have: design thinking, critical thinking and innovation. Thinking everybody do. छोटा बच्चा है वो भी सोचता है कि मुझे खेलना है तो कैसे खेलना है, मुझे खाना तो कैसे खाना है. हम बड़े हैं तो हमें पता है हमें कैसे पढ़ना है, अपना शेड्यूल कैसे बनाना है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी क्लास है. वी ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग इट. बट वाई वी पुट द वर्ड कॉल्ड डिजाइन एंड क्रिटिकल, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है यहाँ पर. क्योंकि जितने भी रिसर्चेस आप देखेंगे वो कहीं ना किसी प्रॉब्लम से ही जुड़े हुए थे. एंड डेफिनेटली कोविड इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच टीच अस अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपदा में अवसर हम लोगों ने ढूंढा. जिन लोगों के बिजनेस नहीं थे, जिनको पता नहीं था, उन्होंने खाना बनाना शुरू किया, दे आर फेमस नाउ. लोगों ने यूट्यूब बनाने चैनल शुरू किए, दे आर फेमस नाउ. लोगों ने मास्क बनाने शुरू किए, सैनिटाइजर बनाने शुरू किए, हेल्प करना शुरू किया. So people are getting famous and famous and famous and famous. So it means आपदा में एक अवसर उनको मिल गया. But this is not exactly the design thinking or critical thinking. This is just a thinking और मुझे आइडिया आया, मैंने उसको इनोवेट किया और मेरा काम हो गया. Now the thing is that we have to be understand this particular part. किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए 7 मॉडल्स हम बोल सकते हैं. मतलब ये ब्रॉडली है. इट डिपेंड कि आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं. लेट मी डू लाइक दिस. हाँ ठीक है, कैसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं. कोई कहता है साइंटिफिक मेथड्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल्स, आप मॉडल्स बनाइए, ब्रॉड स्ट्रेटजी बनाइए, बहुत दूर तक सोचिए, रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस देखिए, डिसीजन के हिसाब से देखिए, हेल्थ ट्रीटमेंट का प्रोसेस देखिए, डिजाइन प्रोसेस देखिए. सो मल्टीपल थॉट्स है. ऐसा नहीं है कि यू हैव टू फॉलो दीज रूट्स ओनली. द ओनली इंटेंशन इज दैट आवर इशू गेट रिजॉल्व. दैट इज द मेन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टफ. ठीक है. So now let's think about the design thinking.
क्या है डिजाइन थिंकिंग और क्यों इसको डिजाइन थिंकिंग कहा गया है? थिंकिंग तो है ही है, हम लोग सोच रहे हैं कि ये अतुल जो है ये क्या बोल रहे हैं, ये थिंक चल रहा है मेरे माइंड में, लेकिन व्हेन यू ऐड द वर्ड डिजाइन विद दैट, द कंप्लीट स्ट्रक्चर हैज बीन चेंज ऑफ थिंकिंग. और व्हाट दे सेज, व्हाट द डेफिनेशन सेज, इट इज आइडियोलॉजी सपोर्टेड. मतलब कि जब आपके आइडिया को कोई प्रोसेस सपोर्ट कर दे. मेरे पास आइडिया क्या है, चलो रॉकेट बनाते हैं, ये आइडिया है, लेकिन जब उस आइडिया को एक प्रोसेस सपोर्ट कर देता है, देन इट बिकम अ डिजाइन थिंकिंग. ये बहुत लेमन लैंग्वेज में मे बी आप बोलोगे नहीं सर ये तो डेफिनेशन ही नहीं बनी. इट इज वेरी इजी फॉर्मेट टू अंडरस्टैंड फॉर बोथ ऑफ अस. मैंने से बोथ ऑफ मीन्स मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं. ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूं या मैं बोल रहा हूं तो आप सब सुन रहे हैं तो मैं बहुत बड़ा हूं, ऐसा नहीं है. वी बोथ आर डूइंग द सेम थिंग. हम लर्न भी कर रहे हैं और हम ग्रो भी कर रहे हैं. तो डिजाइन थिंकिंग क्या हुआ, जब आइडिया सपोर्टेड बाय एन एकम्पनिंग प्रोसेस, तब उसको हमने डिजाइन थिंकिंग का कन्वर्ट किया कि भैया ठीक है आइडिया तो है मेरे पास, उसका एक प्रोसेस बनाते हैं. जैसे शायद कभी कभी आपके कॉलेज में ये बात आई होगी, चलो गेस्ट लेक्चर्स करते हैं. ये एक आइडिया था किसी के माइंड में, लेकिन उसको प्रोसेस बनाया गया. अच्छा गेस्ट लेक्चर्स करना तो कौन से हम स्पीकर्स बुला सकते हैं, क्या लेवल होना चाहिए उनका, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उनका. चलो कॉलेज से तो हो गए, क्या हम किसी इंडस्ट्री को बुला सकते हैं, इंडस्ट्री पर्सन को बुला सकते हैं. तो उन्होंने कहा अच्छा इंडस्ट्री पर्सन को बुलाना है, तो हम बोलेंगे छोटे से को, भाई जाओ तुम जाके बात करो, नहीं होगा. लेट्स से कि ठीक है हम एचओडी को बोलेंगे, सर या मैम आप जाइए, आप मेल डालिए इनको, ये हमारे नॉन में है, लेट्स से कंफर्मेशन, फिर हम प्रोसीड करेंगे. तो क्या हुआ, आइडिया आया और उसको एक प्रोसेस के साथ हमने क्लब कर दिया. अगर मैं फैक्ट बताऊं तो एवरीथिंग इज लाइक दिस ओनली. आइडिया है, हम उसका प्रोसेस को क्लब कर देते हैं, ठीक है. और डिजाइन थिंकिंग कहते हैं बेसिकली असर्ट ऑन द हैंड्स ऑन, कि आपकी पकड़ कितनी, आपको एक्सपीरियंस कितना उसके ऊपर, प्लस यूजर सेंट्रिक अप्रोच. मुझे ये नहीं देखना कि सिर्फ ये आज प्रॉब्लम आया सॉर्ट आउट हो जाए. मुझे ये देखना है कि अगर ये प्रॉब्लम कल फिर आता है तो वो सॉर्ट आउट कैसे होगा. जैसे आई गेस हम में से बहुत लोग हैं जिन्होंने शायद बुक्स में पढ़ा होगा कि 1900 समवेयर जब ये प्लेग की बीमारी आई थी, तब भी ऐसे कोविड जैसा हाल था. बहुत लोग बहुत लोग मर गए, लेकिन तब शायद गवर्नमेंट ने, हमारे लोगों ने, या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास वो टेक्निक्स नहीं थी, हमारे पास वो माइंड्स नहीं थे, जिन्होंने कभी ये सोचा होगा कि शायद आज से 100 साल बाद फिर बीमारी आ सकती है. लेकिन अब इस कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया. इसने यूजर सेंट्रिक अप्रोच किया कि नहीं, अगर ये फ्यूचर में कभी ऐसा हो जाए तो कैसा होगा. हम कहते हैं कि हमने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत स्ट्रगल किया. फिर 1947 की लड़ाई हुई, बंटवारे हुए, लोग पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान चले गए, लेकिन चीज़ें बढ़ती गई. बट यहाँ पर क्या पर्पस है कि अगर मुझे कुछ ऐसी बिल्ड करनी है जो इनोवेटिव हो, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग द डिजाइन थिंकिंग. पर्पस ये नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, पर्पस ये है कि आप ये समझिए कि अगर कल आपको अपना कोई बिजनेस शुरू करना है तो वो ऐसा होना चाहिए कि जो बाकी लोगों से compete कर सके. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आई वाज व्हेन, जब मैं पुणे में था, व्हेन आई वाज इन पुणे, वहाँ पर एक एयरपोर्ट के आगे एक प्लेस है छोटा सा, मतलब प्लेस क्या, लाइक अच्छी प्रेमाइसिस है. तो वहाँ पर एक छोटे लड़के ने कंसेप्ट शुरू किया, छोटू का. क्या कंसेप्ट था कि आप उसको मैसेज भेजो या उसको कॉल करो, वो आपके घर पे प्रोडक्ट ला के डिलीवर करके देगा और वो हर प्रोडक्ट का 1 रुपया लेगा. ठीक है. तो शुरू में उसका काम चलना शुरू, मतलब उसको लगा कि अरे भाई तो बढ़िया है. अब लोगों ने, कुछ लोग सिगरेट्स मंगाते थे, कुछ लोग राशन मंगाते थे, कुछ लोग चीज़ें मंगाते थे, तो चीज़ें चलनी शुरू हुई. आज के टाइम में वो छोटू का अपना पूरा एक ऐप बना दिया है और उसने अपने नीचे लोग रखे हुए हैं. दिस इज व्हाट कॉल्ड द इनोवेशन हेयर. आप रेस्टोरेंट्स में जाइए, पहले रेस्टोरेंट्स में अगर हम जब जाते थे तो क्या होता था, वेटर आएगा, वो पेपर पे लेता था, अच्छा एक दाल मखनी, 2 नान, ये वो. अब क्या है, आप जाइए, आपको पैड दे, आईपैड या पैड दे देंगे, बोलेंगे इस पर सर आप ऑर्डर कर दीजिए, यू डन योर ऑर्डर, और वेटर आपके पास डिलीवर नहीं करेगा. नाउ द सिस्टम हैज बीन चेंज कि वो एक ट्रेन बना देंगे, वो जाएगी आपके पास, रुकेगी, आप अपना ऑर्डर लीजिए और खा लीजिए. दिस इज व्हाट द इनोवेशन, कि ह्यूमन रिसोर्सेज थोड़ा से कम करके इसको इनोवेट किया जाए ताकि हम बाकी जो लोग हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं उनको भी कहीं ना यूटिलाइज कर सकें. और जब डिज़ाइन थिंकिंग हम करते हैं, इसमें मिली 3 प्रिंसिपल्स हमें ध्यान रखने चाहिए. नंबर 1, डिज़ायरेबिलिटी क्या है, कि मुझे क्या प्राप्त करना है लोगों के लिए और लोगों के साथ. इट इज इंपॉर्टेंट. सेंस टू द पीपल एंड फॉर द पीपल, हमारे लिए और अपने लिए,
कि क्या होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे भी कुछ ज्ञान मिलना चाहिए यहाँ से, और मैं कुछ ज्ञान आपको दे भी पाऊँ। दैट इज वॉज द डिजायरेबिलिटी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है डिजाइन थिंकिंग में, डिजायरेबिलिटी रहता है। सेकंड, फिजिबिलिटी। आपने कभी देखा है कि जब जब बच्चे छोटे होते हैं, हम भी छोटे थे, हमें कोई भी टॉय दे दो हम कुछ भी बनाना शुरू कर देंगे। मेरे बेटे के पास बहुत सारे लीगोज हैं। वो कभी उसका रॉकेट बनाता है, कभी उसका रोवर बनाता है, कभी उसका फ्लैग बनाता है, कभी उसकी स्टेयर्स बनाता है। तो वो कुछ ना कुछ बनाता रहता है। ही नेवर चेक कि फिजिबल है कि नहीं है, ही ट्राइड इट। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट है। बट हम क्या है, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे, हम टाइम भी इन्वेस्ट करेंगे, हम माइंड भी इन्वेस्ट करेंगे। सो व्हाट इज टेक्निकली पॉसिबल, कि इसका फ्यूचर क्या होगा। द बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पहले जो टीवी आते थे, ये हमारा इनोवेशन में भी एग्जांपल जाएगा, जो पहले टीवी आते थे उसमें रिमोट नहीं होते थे। अब लोगों ने क्या किया, अरे बहुत ठंडा, टीवी कौन बंद करेगा। किसी ने सोचा यार रिमोट बनाते हैं इसके साथ, बन गई, फिजिबिलिटी हो गई। आज रिमोट किस चीज़ की नहीं है। इफ़ आई वॉन्ट टू बी रन दिस स्लाइड शो, मेरे पास उसका भी रिमोट है। मैं यहाँ बैठा हूँ आराम से, दोनों हाथ आपके रखूंगा और मैं करता जाऊँगा, बजाय कि मैं कीबोर्ड पे जाने के। तो ये फिजिबिलिटी टेस्ट हुआ। एंड लास्ट, वाइबलेबिलिटी। जो भी हम चीज़ बनाएं आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी हम बनाएं वो सस्टेन होना चाहिए। हमारे संस्कार अब सस्टेन नहीं है। दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। जो हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास थे संस्कार, वो शायद अब हमारे बच्चों में उतने संस्कार नहीं हैं। तो हमें ऐसा सोल्यूशन बिल्ड करना है कि वो संस्कार जाएं सब में। सो वी हैव टू बी थिंक फ्रॉम द सस्टेनेबल, कि अगर आज से 15 साल के बाद भी कोई इसको यूज़ करे तो वो पर्सन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को यूज़ कर पाए। हमें ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड करना है। अब क्वेश्चन आएगा, सर हमें कैसे पता, हम तो अभी नए नए, हम तो फाइनल ईयर में हैं। बट यू हैव टू बी स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट डायरेक्शन, कि ऐसा कुछ है जो मैं बना सकूँ। ठीक है, इंप्रूवमेंट्स होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पहले दिन बिजनेस किया या आपने पहले दिन आइडिया सोचा नहीं नहीं मुझे वाइबल ही बनाना है, तो मैं सस्टेनेबल बनाना था, मैं नहीं बना, कुछ नहीं है मेरे पास तो मैं नहीं बनाऊंगा। स्टार्ट करिए एंड देन थिंक इसको सस्टेन कैसे किया जाए। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ वंस वी डन विद द डिजाइन, देन वी कम ऑन द क्रिटिकल थिंकिंग। एक्चुअली अगर मैं फैक्ट बताऊं ना, डिजाइन थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन तीनों ऐसे काम करते हैं क्लब होके। प्रॉपर क्लबिंग में काम करते हैं, ये अलग अलग काम नहीं करते, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तीनों में आपस में लिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग का भी मोटो वही है कि प्रॉब्लम क्या है, उसको सोचो और उसका सोल्यूशन दो। दिस इज व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग सेज। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग काम किस पे करती है, जैसे डिजाइन थिंकिंग काम करती है डिजायरेबिलिटी, फिजिबिलिटी और वायलेबिलिटी पे। सेम कंसेप्ट क्रिटिकल थिंकिंग काम करती है मेरे 5 पैरामीटर्स पे। या मैं बोलूँ, अगर मैं बात करूँ तो ये काम करती है फैक्ट्स पे, कि पब्लिक क्या कहती है कि ये होना चाहिए या ऐसा ही होना चाहिए, मेरे एविडेंस क्या कहते हैं। आई एम नॉट श्योर कि आप में से किसी ने वो मूवी देखी है जो ये था वैक्सीनेशन, जिसमें नाना पाटेकर ने बहुत बढ़िया रोल किया। जो इंडिया ने, जब कोविड था तो इंडिया ने वैक्सीनेशन बनाया, तो उस मूवी में बताया गया कि वो वैक्सीनेशन कैसे डेवलप हुई पूरी की पूरी, कितने क्रिटिसिज्म हुए उनके साथ, उनको प्रॉब्लम हुआ मंकीज को पकड़ने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लोग नहीं मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सो दे डिड द डिज़ाइन थिंकिंग, उन्होंने फैक्ट्स पे काम किया कि अगर मुझे ऐसा एक वैक्सीनेशन बनाना है तो इसके फैक्ट्स कितने हैं, अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूँ तो उसका एविडेंस कितना है। फिर ऑब्जर्व किया कि लोगों में कितने चेंजेस हो रहे हैं। शायद अब जाके लोग कहते हैं कि नहीं, जो कोविड वैक्सीनेशन हमने लिया इट इज़ नॉट गुड, लेकिन इसका अभी तक कोई फुल प्रूफ पार्ट नहीं है हमारे पास, फुल प्रूफ नहीं है हमारे पास कि हाँ कुछ लोगों को अभी हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम हो रही है या किसी और चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, कि उसकी वजह से या किसी और वजह से है। तो ऑब्जर्वेशन आर स्टिल गोइंग ऑन एंड आर्गूमेंट टू फॉर्म अ जजमेंट। मेरा मन आया मुझे ये बनाना और ऐसा ही बनाना, ये फैक्ट्स कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आर्गूमेंट्स होते हैं जजमेंट के लिए, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस दोनों का अलग है। तभी तो कहते हैं ना कि जैसे जब कभी कभी खेलते हैं तो 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। संजय दत्त और गोविंदा की जो मूवी है, मेरी फेवरेट मूवी है 1 और 1 11। क्यों? क्योंकि जब दो लोग आपस में मिलते हैं उनके थॉट प्रोसेस अलग होते हैं, दो थॉट्स मिलते हैं, वो एक ही है, एक ही है तो 1 और 11। दैट इज अगेन क्रिटिकल थिंकिंग, आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो। तो जब क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, ये सेल्फ डायरेक्टेड होती है। नंबर 1 कि आपको सोचना है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे हमें पता है, मान लीजिए पिछले कुछ दिन से मैं बोलता हूँ कि मेरा ना बहुत मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, मुझे रिलैक्स चाहिए, तो मुझे अब अपने आप को सोचना पड़ेगा कि मुझे सेल्फ डायरेक्ट कैसे करना है। ठीक है, मैं शाम को 4 बजे के बाद लैपटॉप बंद कर दूंगा,
मैं शाम को 4 बजे के बाद या 5 बजे घूमने जाया करूँगा, 6 या 7 बजे मैं बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन किया करूँगा या मैं बुक पढ़ा करूँगा। ये कोई नहीं बताएगा, ये मुझे खुद करना होगा, क्योंकि मेरी थिंकिंग क्या है, अगर मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे अपने आप को सेट करना है, तो मुझे सेल्फ डायरेक्शन भी करनी पड़ेगी। वो देन सेल्फ डिसिप्लिन, आज किया कल नहीं किया ऐसे नहीं चलता। अगर कुछ चीज़, क्योंकि क्योंकि देखो यहाँ पर बात क्या है, एविडेंसेस की बात है, फैक्ट्स की बात है, ऑब्जर्वेशन की बात है। तो ये गैप्स भी हो सकती हैं और ये मेरे रेगुलर बेसिस पे भी हो सकती है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि अगर मान लीजिए आप ठीक नहीं है, तो डॉक्टर बोलेंगे आपको लगातार 5 दिन हमारे पास आना है, हम आपका बीपी चेक करेंगे, इसी टाइम पे आना और खाली पेट आना है। क्यों? क्योंकि उनको वो फैक्ट्स चाहिए, उनको वो एविडेंस चाहिए कि हाँ आपको कोई बीमारी है या नहीं, उनको ऑब्जर्व करना है वो 5 दिन। जैसे कई बार होता है डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद बोलते हैं विल कीप यू फॉर द 2 days फॉर द ऑब्जर्वेशन। उसमें करना कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं करना, कोई दवाई कुछ ऐसा नहीं करना, कुछ स्पेशल नहीं करना, लेकिन दे वांट टू बी ऑब्जर्व इट कि क्या जो हमने फैक्ट्स या एविडेंसेस पिछले 2 दिन में देखे, क्या वो दोबारा रिप्रोड्यूस हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, वो यहाँ पर आता है। एंड सेल्फ मॉनिटर्ड, मुझे खुद देखना है कि मैं कितना बढ़ रहा हूँ उसके ऊपर, मैं अपने आप की मॉनिटरिंग खुद कर रहा हूँ। मुझे पता कि हाँ मैंने आज मेडिटेशन शुरू किया, आई एम फीलिंग रिलैक्स, इसको कंटिन्यू करके देखते हैं। एंड सेल्फ करेक्टिव, नहीं यार मन नहीं लग रहा मेडिटेशन में, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है काम करते हैं, मेडिटेशन में सुबह करता हूँ, वॉक में शाम को जाया करूँगा, नहीं अभी भी नहीं हो रहा, ठीक है चलो खेलना शुरू करते हैं, लेट्स गो फॉर द क्रिकेट इन द इवनिंग, लेट्स गो फॉर द बैडमिंटन इन द इवनिंग। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं, या आपको सोचने का तरीका दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर। तभी, और ऐसा नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग मुझे कोई बाहर जाके करनी है, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है, आप जैसे अभी सर ने बताया कि आप सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप जाइए और देखिए आपने पिछले 1 साल के टेस्ट में कितने नंबर्स किए, वो आपको फैक्ट्स मिलेंगे, कहाँ कहाँ फेल हुए वो एविडेंस मिलेंगे। ऑब्जर्व करिए कि जब जब मेरे एग्जाम से मैंने कितनी कितनी पढ़ाई की, वहाँ से ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, और आर्गूमेंट अपने आप से करके देखिए कि क्या मैंने सच में पढ़ाई की कि नहीं की, वो मुझे जजमेंट मिलेगी। और मुझे पता है अगर मैं फाइनल में नहीं पढ़ाई करूँगा प्रॉपर तो आई विल फेल। तो वो करने के लिए आपको खुद डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा और करेक्टिव थिंकिंग करनी पड़ेगी उस स्तर पे। तो ये जो पार्ट है ये क्रिटिकल थिंकिंग आती है। ऑल्सो क्रिटिकल थिंकिंग डजंट मीन कि आपको बिजनेस में ही अप्लाई करना, आइडियाज में ही अप्लाई करना। क्रिटिकल थिंकिंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ एज वेल इज अ क्रिटिकल थिंकिंग। कई लोग करते हैं, लोग डायरी लिखते हैं, लोग मिस्टेक्स लिखते हैं। अब मैं एक सुन रहा था, वीडियो सुन रहा था, उसमें बोला कि हम भगवान से रोज इतनी कंप्लेंट करते हैं, अरे भगवान क्या 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 तुमने ये नहीं दिया, तुमने पैसे नहीं दिए, तुमने नंबर नहीं दिए, बट कभी हमने सोचा कि हमने भगवान को थैंक यू भी किया, क्या आज आपने एक अच्छा खाना दिया, हमें अच्छे कपड़े दिए, हमें एक अच्छा रहने के लिए घर दिया, हमें हमारे माँ बाप दिया, हमें एक अच्छा लाइफ दिया आपने। इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग वो चीज़ें भी इंप्रूव हो जाएंगी, क्योंकि ये सेल्फ मॉनिटर्ड में आता है आपका। बुराई करोगे तो बुराई हो जाएगी, बट इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन द पॉजिटिव पार्ट कि हाँ फैक्ट्स लेके आओ ना। अभी क्योंकि कई बार क्या होता है, ये चीज़ सुननी पड़ती है, मतलब सुननी क्या पड़ती है, सुनते भी है, मैं भी बहुत बार सुनता हूँ इसके ऊपर। तो लोग कहते हैं जब आप रात को सोएं उससे पहले आप नोट करें कि आज आप दिन में कितने गलत काम किए और कितने अच्छे काम आपने किए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके गलत काम की लिस्ट बिल्कुल कम हो जाएगी और अच्छे काम की लिस्ट टॉप पे पहुंच जाएगी। दिस इज व्हाट सेल्फ करेक्टिव, सेल्फ मॉनिटर्ड एंड सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ डायरेक्टेड भी होता है। तो अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो आप क्रिटिकल थिंकिंग से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बशर्ते विद दिस फॉलोइंग दिस 4 प्रिंसिपल्स है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए, आप आइडेंटिफाई करो कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, एनालाइज करो, इवेल्युएट करो और फिर उसके लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट करो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द क्रिटिकल थिंकिंग ऑन दैट पार्ट। मेनली डिजाइन थिंकिंग इज अ यूजर सेंट्रिक, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग आप सेल्फ सेंट्रिक भी कर सकते हो, अपने लिए भी कर सकते हो। और जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो तो हमें कुछ डेटा चाहिए होता है, फैक्ट्स चाहिए होते हैं, रिसर्च फाइंडिंग्स होती है हमारे पास, और फिर हम उससे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। पिक्चर बहुत फैंसी है, लेकिन अगर मैं बताऊं आपको इतना भी करना है, आपको ये 4 करने में भी कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे। आप ढूंढिए, फैक्ट्स ढूंढिए अपने लिए, आप अपने एविडेंसेस ढूंढिए कि मेरी प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के एविडेंसेस क्या है, ऑब्जर्व करिए और फिर उसको आर्गूमेंट्स करके देखिए। तो ये मेरा आता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में। आप एनालाइज करिए और बी ओपन फॉर मिस्टेक्स, बी ओपन टू एक्सेप्ट, हाँ ये मेरी गलती थी, मैंने नहीं पढ़ाई की। मैं आपको बताता हूँ, इन 2006 और 7 मैंने CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम दिए थे।
इट इज़ अ फैक्ट। मैंने सी ए फाउंडेशन के एग्जाम दिए थे बिकॉज माई आई डन माई ग्रेजुएशन इन द बी कॉम। ठीक है, बी कॉम के बाद एम सी किया तो बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लेकिन जब मेरा लास्ट एग्जाम था उससे पहले एक छुट्टी थी, सैटरडे संडे की छुट्टी थी और मंडे को मेरा एग्जाम था। और उस सैटरडे संडे मैं एग्जाम से, जहाँ एग्जाम था बाला में था, मैं वहाँ से अपने घर वापस आ गया कुरुक्षेत्र, और मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। और वही हुआ जिसका मुझे डर था, मैं फेल हो गया उसी सब्जेक्ट में, फेल हो, बाकी तीनों में पास हो गया था मैं। दिस इज व्हाट इज दिस ईयर। सो आई एक्सेप्ट इट, यस ये फैक्ट है मेरे पास कि मैंने नहीं पढ़ाई की, ऑब्जर्व किया, बट उसके बाद दोबारा करने की इच्छा नहीं, तो मैंने उसको पिकअप नहीं किया। बट इफ यू वांट यू कैन इम्प्रूव इट योर सेल्फ। एंड द लास्ट विच इज कॉल्ड इनोवेशन। इनोवेशन जो बेसिकली वर्ड है आजकल बहुत फैंसी है, बहुत ग्लोरियस है, बहुत फेमस वर्ड है मार्केट इंडस्ट्री में। ठीक है, इनोवेशन का मतलब होता है रिन्यू। सिंपल अगर मैं बोलूं, क्योंकि इट्स ए लैटिन वर्ब, इसका मतलब है रिन्यू। अब रिन्यू मतलब क्या? इफ यू आस्क मी, एज पर माई परस्पेक्टिव, इनोवेशन मतलब कि जब आप किसी चीज, किसी प्रोसेस, किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विस को यूज करने का तरीका ही बदल दे पूरा का पूरा, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। जैसे पहले जो मोबाइल फोन आते थे वो बड़े बड़े इतने मोटे मोटे हैंडसेट्स आते थे, आज उसको यूज करने का तरीका पूरा बदल गया है। आज ऐसे फोन भी हैं कि आप अपने घड़ी पे बस रखिए और फोन का काम कर जाते हैं, ऐसे करिए पूरा स्क्रीन ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। जो मेटावर्स है, एआई टेक्नोलॉजी है, दिस इज व्हाट अब इनोवेशन। आज आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, शायद पॉसिबली जब आपके कॉलेज में जो है, अगर वो कभी मेटावर्स पर अपनी लैंड लेंगे, बोलेंगे सर आज आप हमारे साथ ये करिए, सेशन करिए हमारे मेटावर्स बिल्डिंग में, तो शायद मैं भी पूरा हेडसेट लगा के बैठूंगा, मैं आपको देख पाऊंगा, ऑब्जर्व कर पाऊंगा, आप मुझे देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, लाइक अ फिजिकल टच। तो ये इनोवेशन होती है। सो मेनली क्या है कि जब आप या तो रिप्लेस कर दे पूरा का पूरा, या फिर इंप्रूव कर दें पूरा का पूरा। जैसे मैंने बताया, रिमोट, टीवी रिमोट इज अ इनोवेशन। उसने पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया टीवी का। अब आपको उठ के जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ रिमोट से ऑन ऑफ करते हैं, आपका फोन चल पड़ता है, सॉरी आपका टीवी चल पड़ता है। अब जो इनोवेशन होती है वो दो तरह से होती है, एक होती है फंक्शनल, एक होती है इमोशनल। जैसे फंक्शनल, जैसे हमने बताया टीवी का रिमोट है वो फंक्शनल है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी या आपके पापा आपको एक फ़ोन गिफ्ट करते हैं, मे बी आईफोन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपको फ़ोन गिफ्ट करते हैं, आज से 8 साल 10 साल के बाद अगर वो फ़ोन ख़राब भी हो जाता है फिर आप उसको फेंकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप उससे इमोशनली अटैच है। नहीं, ये तो मेरी मम्मी ने मुझे पहली बार दिया था जब मेरी जॉब लगी थी, राइट? तो ये मेरा इमोशनल इनोवेशन में काउंट होता है। और इंटेंशन क्या है इनोवेशन का, कि आपका जो इनपुट है वो कम होना चाहिए और आउटपुट आपका बढ़ना चाहिए। मतलब कि रिमूव अननेसेसरी फ्रॉम द प्रोडक्ट। जितना भी अननेसेसरी कचरा है वो सब हटा दो। अब सर कचरा हटा दो मतलब, ये टेक्निक्स होती है, जैसे लीन सिक्स सिग्मा, हमारी लीन जो है 6 सिग्मा है, हमारी टेक्निक्स होती हैं। ये ऑब्जर्व करना कि मेरे इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें फालतू, उसको हटा दो, तो ही आपका इनपुट्स कम होगा और आउटपुट्स आपका बढ़ेगा। जैसे जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, कार, जब कंपनीज कार देती हैं तो उन्होंने क्या किया, पहले इंजन आता है जिसको हर 2 महीने में सर्विस करनी पड़ती है, लेकिन अब इंजन कैसे आते हैं कि आप 15,000 18,000 किलोमीटर चलाओ, 1 साल चलाओ, तब तक आपको सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अननेसेसरी स्टफ था उसमें से निकाल दिया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने चीज़ों को चेंज किया और फाइनली इनपुट को जीरो कर, ऑलमोस्ट जीरो कर दी। जीरो कभी नहीं होता मेरे हिसाब से, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है और आउटपुट बढ़ जाता है। प्रोडक्टिविटी, आपका प्रोडक्ट का जो यूसेज है, प्रोसेस का जो यूसेज है, वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है। कह भाई जितना बट यूज़ करो कुछ नहीं होगा। दिस इज व्हाट इज द फैक्ट हियर। एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी स्टार्टअप विद द कंसेप्ट ऑफ द इनोवेशन, देन यू हैव टू मेक श्योर इट शुड बी चीपेस्ट। कोई महंगी चीज़ एकदम नहीं लेता। इट शुड बी बेटर देन द अदर, कि भैया वो ऐसा क्या दे रहा है जो मैं नहीं दे रहा। शायद जो ये है आपका क्या कहते हैं, अरे जिसने अभी 10 मिनट की डिलीवरी की, 8 से 10 मिनट का डिलीवरी, में नाम भूल गया उसका, जोमेटो और व्हाट, जिन्होंने बोला कि 10 मिनट में आपके घर डिलीवर पहुंच जाएगा। तो उन्होंने ऐसा क्या किया जो इम्प्रूव किया? फास्टेस्ट होना चाहिए। लेकिन इफ यू आस्क मी स्पेसिफिकली, मेरे हिसाब से अगर आप इनोवेशन करें, दैट इज शुड बी सस्टेनेबल। ऐसा सॉल्यूशन जो आने वाले 5 7 8 साल 10 साल चल सके,
दैट इज कॉल्ड द इनोवेशन. क्योंकि अब इनोवेशन करने के लिए आप डिज़ाइन थिंकिंग लेके आओ साथ में, इनोवेशन करने के लिए चाहे आप क्रिटिकल थिंकिंग लेके आओ साथ में, दैट्स डजेंट मैटर. और एक्चुअली में जब हम इनोवेशन करते हैं, हम ये तीनों चारों चीज़ों को क्लब करके करते हैं. हम डिज़ाइन थिंकिंग भी लेके आते हैं, हम उसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी लेके आते हैं, फिर उसको इनोवेट करके देखते हैं कि क्या हम इसमें कर सकते हैं. सो योर इफ़ यू आर स्टार्टिंग एनी स्टार्टअप स्पेसिफिकली एंड यू आर प्लानिंग फॉर द इनोवेशन पार्ट, इट शुड बी चीपेस्ट. चीपेस्ट का मतलब ये भी नहीं कि मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं, नहीं. मिनिमम बेयर आपको होना चाहिए. बेटर होगा जो पिछले प्रोडक्ट से है, फास्टेस्ट होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए और डिस्ट्रप्टिव होना चाहिए. डिस्ट्रप्टिव मीन्स कि मैं ऐसा क्या लेके आऊँ जो अभी चल रहा है वो पूरा का पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाए. आज से 8-10 साल पहले कोई भी कैब यूज़ नहीं करता था, लोग ऑटो यूज़ करते थे. लेकिन जब से ओला उबर के आने शुरू हुए, पूरा का पूरा मार्केट बन गया कैब का, पूरा टैक्सी मार्केट बन गया पूरा का पूरा. दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन. कि हमें नहीं पता कि ओला का ऑफिस का, हमें नहीं पता उबर का ऑफिस का, लेकिन हमें पता है कि हाँ ये वाले भैया ओला चलाते हैं, वाले भैया उबर चलाते हैं. दिस इज व्हाट इज द इनोवेशन, व्हाट दे ब्रिंग इनटू द इंडस्ट्री नाउ. और अभी ये पूरा टैक्सी का बिजनेस है, ये पूरा एक बिजनेस, सॉरी जो टैक्सी का फॉर्मेट है ये पूरा एक बिजनेस बन गया अभी. डिलीवरीज जो होती है, डिलीवरू हो गए आपके, जोमेटो हो गए आपके, ग्रोफर हो गए आपके, सारे क्या है, ये स्टार्टअप्स ही तो धीरे धीरे करके हैं और काम हो गया. सो नाउ ऑन द टाइम कोई क्वेश्चन आंसर है, यू कैन पुट इट हियर. यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन द यूट्यूब, ये मेरा चैनल है. यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन द लिंक्डइन. इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन द फोन, यू कैन कनेक्ट हियर. I'll just put my number as well here. Sorry, my not number. I'll put my details of the LinkedIn and the YouTube channel. You can connect with me. I'm a YouTuber as well, so I create videos on the different topics, specifically on my domain perspective. So if you want to connect with me, you can connect on that part. Over to you, ma'am. Any doubt, question, clarification? On time, 30 sharp. Sir, I have one question. Go ahead. Sir, how can individuals or any organization can cultivate the culture of both design thinking and critical thinking among the students? देखिए, for this one the important point is that we have to be add something in our curriculum. ओके, आप कुछ ऐसे Yes. यूज केस उठाइए, बेशक बने हुए यूज केसेस है, लेकिन आप स्टूडेंट्स को दीजिए अगर ये यूज केस आपको बनाना हो तो व्हाट इज योर आइडिया. और ये बताइए कि ये आप पुराने या टीवी पे जो शो चल रहा है, या टीवी पे जो ऑलरेडी बने हुए हैं, उसके अलावा कोई आइडिया लेके आइए. तब डिज़ाइन थिंकिंग ज़्यादा होती है. इसके वर्कशॉप्स भी होते हैं, बट मेनली जो मेरा मेरा थॉट प्रोसेस है यही है कि आप टीम्स बनाइए, या हर मंथ में एटलीस्ट एक फ्राइडे या 2 महीने में एक फ्राइडे रखिए, जब आप अपने स्टूडेंट्स को यूज़ केस दीजिए कि भैया ये मेरे को बना के देना है, अब आप बताओ आपके थॉट प्रोसेस इस पर क्या है. तो जब बच्चे या स्टूडेंट इस पर थॉट लगाते हैं तब चीज़ें चेंज होती हैं, फिर वहाँ से कल्टिवेशन होता है. प्लस अभी जैसे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा, अगर आपको कोई स्टार्टअप वगैरह करना है तो गवर्नमेंट के भी प्लान्स चलते हैं. बट हाँ, उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका खुद का थॉट प्रोसेस क्या है, कि वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है. आप क्या सोचते हैं इस प्रॉब्लम पे. हो सकता है शायद आप मेरे से पूछें सर चलो रेस्टोरेंट खोलते हैं. अरे नहीं अमरजीत सर, लाखों रेस्टोरेंट, हम रेस्टोरेंट क्यों खोले, हम कुछ और खोलते हैं. जैसे हम क्या खोलते हैं, हम एक ऐप बनाते हैं कि आपके घर पे शादी है, आपको 2 घंटे के लिए कोई शेफ़ चाहिए, हमें फ़ोन करो, हम आपको शेफ़ भेजेंगे. आपको घर पे गाड़ी क्लीन करानी है, हमारे पास क्लीनर भी है, हम आपको घर भेजेंगे. आपको कपड़े प्रेस करवाने हैं, आप बाहर नहीं सकते, आप हमें बताओ, हम आपके घर आके कपड़े प्रेस करके जाएंगे. तो ये एक इनोवेटिव आइडिया है, लेकिन इसको करने के लिए पूरा डिज़ाइन थिंकिंग चाहिए. क्या हमारे इंडिया में लोग इतने कैपेबल हैं कि वो मुझे घर बुला के 2,000 रुपये देंगे खाना बनाने का 5 लोगों के लिए, या 50 लोग हैं, क्या मैं 2 घंटे में खाना बना पाऊंगा अगर सामान भी मुझे अपना लेके आना है. तो ये चीज़ें डिज़ाइन थिंकिंग में आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में आती है मुझे. और ये कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, ऐसा नहीं कि मैंने एक बार प्रोसेस सेट किया तो बन गया. ये हर बार आप लर्निंग से सीखेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या है, सस्टेनेबल होना चाहिए. मैं जो बिजनेस आज बना रहा हूँ, इट शुड वर्क फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स, ताकि वो काम मेरा कंटिन्यू चल सके. ये मेरा थॉट प्रोसेस है सर इसके ऊपर. ओके सर. सर अदर क्वेश्चन है. जी सर, 1 मिनट दीजिए, मैं चार्जिंग ऑन कर लूँ जरा. ओके ओके. हाँ जी सर. जी सर बताइए. हाँ सर, एक क्वेश्चन है कि अगर
इनोवेशन या फिर आप स्टार्टअप वगैरह जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो जैसे आप यूके में रहते हैं, तो यूके स्टूडेंट्स और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो आप को क्या थोड़ा सा सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस या कैसे आप इसको देखते हैं जो है? सर देखिए, यहाँ पर अगर मैं कंट्री के हिसाब से बात करूँगा थोड़ा थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बट हाँ ये है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर है जिनसे हम बात करते हैं मिलते हैं, उनका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अलग होता है. दे ट्राई टू बी सी कि कोई ऐसा जो मार्केट में नहीं है मुझे वो बिल्ड करना है, एंड स्पेसिफिकली देन दे स्टडी दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली, कि नहीं मुझे मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा बिल्ड करना है, या मुझे जैसे अभी मेरे हमारे एक फ्रेंड हैं, उनके उनके जो बेटे हैं उनके दोस्त आए हुए थे, तो वो कुछ ऐसा एक इक्विपमेंट बना रहे हैं जिसको आप अपने हाथ में डालेंगे तो आपके फिंगर्स की तरह काम करेगा. अब आप बोलोगे सर ये तो इंडिया में ही मिलते हैं. हाँ मिलते हाँ. हैं, लेकिन दे आर बिल्डिंग समथिंग की जो उसका फ्लेवर है, जो उसका टच है, वो भी आपको बिल्कुल ह्यूमन टच लगेगा, और आप उससे अपनी फिंगर्स पे काम भी कर सकेंगे. तो ये उनका एक इनोवेटिव प्रोसेस है जिसके लिए उन्होंने अपने जो रिसर्च किया, उसका पेटेंट वगैरह उन्होंने किया और जो चीज़ें डॉक्यूमेंट की. द ओनली थिंग इज दैट शायद हम लोग इसको इतना बढ़ावा नहीं देते जितना बाहर के लोग देते हैं. हमें लगता है कि अरे मार्केट में हम क्यों बनाएं, लेकिन अगर हम सोचेंगे तो डेफिनेटली हम भी वो चीज़ बना सकते हैं डेफिनेटली. यस. तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. मतलब अल्टीमेटली अगर मैं बताऊं, ना तो आप ना मैं, जब तक हमारे अंदर से साउंड नहीं आएगी कि हाँ मुझे ये करना है, तब तक वो चीज़ें नहीं होंगी. दैट इज द फैक्ट. यस सर, श्योर सर. यस सर. तो वो है. Any other questions from the floor? Students? सो अगर कोई कनेक्ट करना चाहता है, डिस्कशन करना चाहता है, आई एम अगेन पुटिंग दिस माई लिंक्डइन ID एंड यूट्यूब. सो आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करिए, वी कैन स्पीक, वी कैन डिस्कस ऑन दैट पार्ट एज वेल. मतलब ये बट अवॉइड कि सर मेरे को जॉब चाहिए, जॉब दिलवा दो, सॉरी मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता. बट हाँ अगर आपको कुछ और करियर गाइडेंस चाहिए कि सर मैं पढ़ रहा हूँ, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या कुछ टेक्निक्स या कुछ मेथड्स आप इस पर और बता सकते हैं, आई एम हैप्पी टू सपोर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट. Well, as I said, it was a very crisp and very, informative session. One thing which I have learned that yes, if really we want to, whatever we are doing, critical thinking or even innovations, that is obviously for the sustainability in the environment, sustainability Yes. in the industry, sustainability among the technology. So that is the most important thing. Thank you very much, sir. This is a very crisp answer which I have got you, from ma'am. you, which even I was searching from many time. So thank you very much, sir. Thank you. That's really within 30 minutes. This session was awesome. Right. Thank you very much एक चीज़ for और your एक चीज़ और support रहेगी. and for your valuable knowledge. सॉरी, ओके मैम, सॉरी. एक चीज़ जो रह गई जनरली, जो मैं अपने लेक्चर्स में हमेशा लेता हूँ, कि जब भी हम कोई लेक्चर, स्पेसिफिकली जब मैं कोई सेशन लेता हूँ या मैं सेशन करता हूँ किसी के साथ, सो वी ऑलवेज प्रे टू गॉड कि थैंक यू, आपने हमें पावर दिया, हिम्मत दिया, जो मैं शुरू में भूल गया यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी सर ने बोला कि 30 मिनट्स, ऑलरेडी हम 3 मिनट लेट हुए. सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी हियर, लेट्स टेक 10 सेकेंड पॉज हियर. आप जिनको भी मानते हैं, प्रे टू गॉड कि जो भी हमने सीखा, जो भी हमने सुना, जो भी हमने समझा, इट शुड बी गो इन अ प्रॉपर एंड पॉजिटिव मैनर इन अवर माइंड्स, ताकि हम उसको कंटिन्यू कर सकें और उसको एक बिल्ड कर सकें. ठीक है, ये मैम जस्ट 10 सेकंड्स में लूंगा, उसके बाद आप Yes, कर सकते हैं सेशन please. को. Sure, Yes. sir. श्योर Absolutely. सर. Over to you, ma'am. Thank you very much, sir. I hope students have enjoyed this session. We would like to get many more sessions from you, sir, Sure, in the ma'am. future. Yes. Yeah. I'll Amarjeet, definitely. sir, anything to ask? Okay. Thank you, Gajala ma'am, and thank you again, Atul sir, for Thank you, sir. sparing your valuable times Thank you. and giving an insightful talk on design thinking and critical thinking. So thank you, sir. Okay. ठीक है सर, मुलाकात करते हैं आपसे. थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबडी फॉर लिसनिंग मी, टू गिविंग मी चांस टू शेयर माय नॉलेज विद यू ऑल. टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक यू. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, students, for joining.